Hello and welcome, everyone. Is my voice clear and audible? Yes, you are audible. Okay, so we'll begin with a short meditation. Sit back and relax. Today, throughout the day, let me look at every scene of life as part of a drama. Everyone around me, whether in family or at workplace, is my co-actor. Keeping the focus on the self, I am powerful, beautiful actor, irrespective of how my co-actors perform. My thoughts, words, and actions are my creation. Let me look at myself through the day. Whatever other actors may say, my performance would be unaffected. Stable, focused, concentrated on my role. My performance, thoughts, and behavior are my creation. Om Shanti. Okay, thank you so much for joining. So we'll begin with today's session. I'll just share the screen with you. Okay, so today's chapter is Love Others When They Least Deserve It. Okay, तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं Someone messaged me a beautiful line. Love the most when I least deserve it, because that is when I need it the most. Sister Shivani keh rahe, that's what we have been discussing in this series so far. So what is this series? What is this book about? It's all about being love. So it's all about being love, even at the worst time, even at the worst moment, जब सब आपके अगेंस्ट हैं और जब आपको कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा, उसमें भी सेल्फ लव कैसे करना है। अपने आप को सबसे ज्यादा तब प्यार करना है जब आपको ऐसे लग रहा है कि आप लीस्ट डिजर्व करते हो। तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं When a person makes a mistake, he is punished for it. But actually, that is the time when he needs others' love and support the most because he is already burdened with guilt. तो जब कोई इंसान गलती करता है पनिशमेंट तो बहुत जल्दी दे देते हैं हम, बट एक्चुअल में क्या है, तब उसको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी उसके अंदर इतना ज्यादा गिल्ट भरा हुआ है, गलत
करने की वजह से, जब इतना ज्यादा खुद सेल्फ हेट्रेड हो रही है, खुद गिल्ट हो रही है, तब उस इंसान को ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, द लाइन होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी सोल। When we think that someone does not deserve our love because he is wrong, that is actually the time when he is in dire need of it. Usually, if someone in the family makes a mistake, the entire family feels hurt. तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, they criticize him and reject him. सिस्टर शिवानी कहते हैं, but why do they do so? If a person does something which his family or the society disapprove of, be it related to his choice of career, life partner, or something else, they consider him to be the cause of their pain. That is why the energy of anger and criticism is directed at him. तो वही सिस्टर शिवानी बता रहे हैं कि क्यों सब क्रिटिसाइज और रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो इंसान कुछ ऐसा करता है जो फैमिली या सोसाइटी अप्रूव नहीं करती, उनको सही नहीं रखता, चाहे उनके करियर को लेके हो या जब मैरिज के टाइम लाइफ पार्टनर उनकी चॉइस का ना हो, तो वो सब उनको ही ब्लेम करते हैं। तो क्या होता है, वो खुद तो गिल्ट में है, बाकी सब भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो टोटल एनर्जी ही एंगर और क्रिटिज्म की पूरे फैमिली में रेडिएट हो रही है, जबकि उनको सबसे ज्यादा उस टाइम प्यार की जरूरत है। The family members need to realize that the individual concerned experiences more pain than any one of them. He feels he has let others down, so he feels guilty and thinks of himself as a failure. He is also afraid of facing others. If they consider him to be the cause of their pain, their energy towards him will be negative. But if they realize he is in greater pain, their energy towards him will change. तो ये सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा पेन में है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। जब वो अंडरस्टैंड करेंगे कि वो भी सबसे डरा हुआ है, और यू नो अगर वो ही उसको वो नेगेटिव वे में देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उसकी तरफ आ रही है। तो जब वो रियलाइज करेंगे कि वो बहुत पेन में है, तब एनर्जी उसकी तरफ चेंज होएगी, वो प्यार कंपैशन वाली फीलिंग आएगी। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, सॉरी, सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं, सम पीपल कमिट ग्रेव एरर्स एंड देन डिसीव अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी गिल्टी, though they never mean to improve. Some borrow money and never return it. Should such people be allowed to repeat their mistakes? तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, in such cases, often the individual concerned is carrying a wrong habit from the past. If we do not approve of his act, we should be strict with him. But creating anger, hate, and criticism against him is not a solution. We should realize that he is originally a pure soul but is currently under the influence of a negative sanskar. So we need to have compassion and sympathy for him. We must keep intact our love and respect for him and assist him in transforming. तो सुरेश ओबरॉय पूछते हैं सिस्टर शिवानी से कि कई लोग तो होते हैं जो बहुत बैड हैबिट्स में होते हैं, जैसे पैसे लेके वापस नहीं करना, और वो प्रिटेंड करते हैं कि गिल्टी हैं, बट उनका कभी इंटेंशन ही नहीं होता इम्प्रूव होने का। तो फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? तो सिस्टर शिवानी कहते हैं कि उनको उनका रॉन्ग हैबिट तो बताना है, कि हमें उनको ये बताना है कि हम अप्रूव नहीं करते, स्ट्रिक्टनेस भी रखनी है, बट इंटरनली हम उनके लिए क्या
फीलिंग रेडिएट कर रहे हैं, उनके लिए हमारे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। अगर एंगर, हेट, रिजेंटमेंट, ये सब चीजें हमारे अंदर चलेंगी, तो वो उनका, वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो उनको वही हमारी तरफ से भी वही नेगेटिविटी मिल रही है। तो हमें ये याद रखना है कि वो ओरिजिनली तो वो भी प्योर सोल है, और किसी नेगेटिव संस्कार के इन्फ्लुएंस में है। तो हमें उनके लिए रहम भाव, कंपैशन रखनी है, सिंपैथी रखनी है, जो एक सोल टू सोल का रिलेशन है, सोल कॉन्शियस होके उनको देखना है। और जब हम उनको प्यार, लव, रिस्पेक्ट रेडिएट करेंगे, तो वो उनको हेल्प करेगा चेंज करने में, उनके ये जो नेगेटिव संस्कार हैं वो छुड़वाने में। A couple shared that their son had a habit of borrowing money from them. He would invest in some business, but it would never work out. A lot of money had been wasted like that. In such a case, parents need to be very strict and should not lend money to their son. This is because if they do so, they will end up endorsing his negative sanskar that they want him to get rid of. They should be assertive and not relent even if the son is stubborn or threatens them emotionally. This will require a certain detachment on their part. तो सिस्टर शिवानी वही शेयर कर रहे हैं कि कपिल ने उनको बताया कि उनके बेटे को ना पैसे लेने की आदत थी, कि वो कुछ इन्वेस्ट करते थे बिजनेस में, और वो वर्कआउट नहीं करता था, तो बहुत मनी ऐसे वेस्ट हुई। तो इन ऐसे केस में सिस्टर शिवानी वही समझाते हैं कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगर वेस्ट हो रहा है पैसे, तो दे शुड नॉट गिव। बिकॉज अगर वो ऐसे करेंगे, तो वो वही है कि वो बढ़ावा दे रहे हैं उस संस्कार को। तो इस केस में असर्टिव होना है, बट अपने अंदर वो नेगेटिविटी नहीं रखनी। अपने अंदर से, अपने माइंड से, अपने थॉट से वो पॉजिटिविटी ही रेडिएट करनी है। ऑल्दो आउटवर्डली तो स्ट्रिक्ट होना है और मना करना है, बट इंटरनली हमें उसको लव और ब्लेसिंग्स ही देनी है। तो इसके लिए वही सिस्टर शिवानी कहती है, थोड़ा डिटैच्ड होके हमें सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जिसमें हमें स्ट्रिक्ट भी होना है, बट इंटरनली हमें अफेक्ट ना करे। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, सम चिल्ड्रन इवन ट्राई टू स्केयर पेरेंट्स विद सुसाइड थ्रेट्स. A child will not take any extreme step if the parents continue to give him the energy of love and support. They must tell him that they do care for him, but they do not agree with him in that particular matter. So they must love and respect the child when he least deserves it. At the same time, they should deal strictly with his negative sanskar so that it is not reinforced. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार देना है। जब जब वो कुछ गलत कर रहे हैं, तब उल्टा उनको एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ लव एंड सपोर्ट देनी है। क्योंकि कई बार वही होता है कि फिर बच्चे सुसाइड थ्रेट्स देते हैं, पेरेंट्स को डराने के लिए। तो बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करना है, बहुत ज्यादा वो लव की एनर्जी रेडिएट करनी है। बट ये जरूर कहना है कि जो वो कर रहे हैं, हम उस मैटर में वो उनके साथ नहीं है, बट उनको प्यार और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा रेडिएट करनी है। सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं, when students don't score well in exams, they feel afraid to go home. At that time, they are in pain and need so much love and care. अब सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं कि इवन बच्चों को जब एग्जाम्स में कम मार्क्स मिलते हैं, तब भी वो डरते हैं घर पे पेरेंट्स को बताने को। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, दैट इज वाई इन अ प्रीवियस कॉन्वर्सेशन वी हैड डिस्कस्ड दैट द बिगर द मिस्टेक अ पर्सन कमिट्स, द मोर वी नीड टू लव हिम. If we love our family and friends, it should mean we are ready to love them even when they least deserve it. If we love them when they are perfect and withdraw our support when they make errors, that's not love. Even if someone's decision goes wrong, that is not the time to tell him,
आई टोल्ड यू नॉट टू डू इट। तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट जब वो परफेक्ट है, जब सब कुछ सही चल रहा है। हमें तभी भी प्यार करना है जब वो कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो प्यार एक तरफा तो नहीं है कि जब सब कुछ परफेक्ट और मेरे हिसाब से चल रहा है तभी मैं इस इंसान से प्यार करूंगी, नहीं। इट इज व्हेन दे आर गोइंग रॉन्ग एज वेल, तभी भी हमने इक्वली उनसे प्यार करना है, उल्टा ज्यादा प्यार रेडिएट करना है। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, इफ माई सन फेल्स एट समथिंग आई कुड से इट हैपेंड बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, but the fact is that my advice may also not always be right. A movie offer that I asked him to turn down could go on to become a super hit. Sister Shivani कहते हैं, all of us make mistakes and no one is an exception. What is a mistake anyway? When we implement something with the expectation that it will work for us, but the result does not turn out to be favorable, we call that a mistake. It is not necessary that every decision of ours will bring the desired result. We need to understand this for ourselves and others. We may advise our family members with the best intention, but once in a while, one of them may act against our advice and may go ahead with his individual choice. If his choice turns out to be wrong, we should not use that as a chance to prove ourselves right. Instead of waiting for him to fall and then saying, see, we were right and you were wrong, we should love him the most at those moments. तो वही सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं कि अगर मेरा बेटा किसी चीज़ में फेल होता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए इसकी वजह से। बट ये भी तो बात है, वो कहते हैं कि मेरी एडवाइस सब टाइम हर टाइम सही नहीं हो सकती। तो अगर मैं उसको कुछ बोलूँ, कुछ ऑफर टर्न डाउन करने के लिए, हो सकता है वो मूवी सुपर हिट भी हो जाए। तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि हम सब मिस्टेक्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और मिस्टेक एक्चुअली है क्या? जब भी हम कुछ अपने एक्सपेक्टेशन का सोचते हैं कि ये हमारे लिए काम करेगा और वो वर्कआउट नहीं करता, हम क्या उसको मिस्टेक कह देते हैं। तो वही है कि हर बार हमारा डिसीजन राइट नहीं होगा। तो वो बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इवन वी मिस्टेक मेक मिस्टेक्स, हर डिसीजन हमारी करेक्ट नहीं होगा। बट जब हम एडवाइस भी करते, इंटेंशन हमारी सही है। बट अगर कोई हमारी एडवाइस ले ना ले, वो उनकी अपनी चॉइस है। वो कहते हैं ना, गिव एडवाइस एंड देन रिटायर लाइक अ शाय चाइल्ड। तो अपनी एडवाइस देके हमें हट जाना है। तो अगर हम कुछ एडवाइस दें और वो गलत हुआ, वो वो उन्होंने हमारी एडवाइस नहीं ली और उनको वो नहीं मिला डिजायर्ड रिजल्ट, तो ये नहीं कहना कि हम सही थे और आप गलत थे। उस टाइम पे भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करना है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई हैड नॉट गॉट मूवी ऑफर्स, बट आई कुड नॉट गो बैक होम बिकॉज I was afraid of taunts from family as they had advised me against taking up acting. तो ये सुरेश ओबरॉय कहते हैं कि मुझे भी मूवी ऑफर्स मिले थे शुरू में, और वो नहीं चले, नो। बट मैं वापस घर नहीं गया क्योंकि मैं डरता था कि मुझे सब टॉन्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि आप एक्टिंग मत करना। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, योर जर्नी वॉज इवेंचुअली सक्सेसफुल, अदरवाइज थिंग्स माइट हैव बिकम डिफिकल्ट. We must remember that whenever our loved ones fail at their decisions, we as their family must stand by them and help them rise again. Let us take an example. We are at a hilltop right now. Suppose I want to jump from this place, but you advise me against it because I would get hurt. You explain consequences and try to dissuade me from doing it.
You rightly stand firm when it is right, when it is time to give advice. But if I decide to jump despite all your efforts to convince me, then there needs to be a total shift in your energy that very moment. मतलब वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि वो जब हमारे लव्ड वंस फेल भी हो जाते हैं उनके डिसीजन में, मतलब हम उनको मना करते हैं फिर भी वो कुछ करते हैं एंड वो फेल हो जाते हैं, सक्सीड नहीं करते, तो भी हमें उनके साथ रहना है, उनके उनके साथ खड़ा होना है, उनको वो प्यार और वो प्यार वाली एनर्जी वाइब्रेट करनी है। ये नहीं कहना कि देखो हमने तो कहा था, आपने किया और नहीं वर्कआउट हुआ। जैसे एग्जाम्पल, कितने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से वो कह रहे हैं कि हिल टॉप पे खड़े हैं और एडवाइस करते हैं कि यहाँ से जंप करोगे तो गिरोगे, मत करो, बट फिर भी आप जंप करते हो। तो उस टाइम पे क्या होगा? सबसे पहले थॉट तो यही आएगा कि मैंने तो मना ही किया था नहीं करने को, बट फिर भी किया। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, इफ आई केयर फॉर यू आई शुड से, इफ यू स्टिल वांट टू जंप, wear a protection gear and secure yourself with a rope. I will have people at the bottom of the hill to hold you and not you hurt yourself. तो वही सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ, अगर मैं मुझे आपके लिए केयर है, तो आप जंप करना चाहते हैं, पर मैं क्या बोलूँगा कि नहीं, आप प्रोटेक्शन गियर लो और कोई नीचे खड़ा हो आपको बचाने के लिए। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, दिस इज इट, वंस आई हैव टेकन द डिसीजन योर रेजिस्टेंस शुड चेंज इनटू सपोर्ट, लव एंड ब्लेसिंग्स। तो सिस्टर शिवानी वही समझा रहे कि बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है कि जब आप देख रहे हो कि अगला बंदा नहीं मेरी बात सुन रहा, वो ही करेगा जो उसको ठीक लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कहीं डैमेज कंट्रोल कर पाऊँ कि इतना उसको अफेक्ट ना करे, और जो मेरी रेजिस्टेंस है, जो मैं उसको मना कर रहा हूँ, वो मैं लव और ब्लेसिंग्स में ट्रांसफॉर्म करूँ कि कोई बात नहीं, ये करने जा रहा है बट ये सेफ हो, मैं उसको कैसे सेफ रख सकूँ, उस चीज पे हम हमारे थॉट्स जाएं और हम उस पे हेल्प करें। Suppose I do jump and even get injured. This is not the time when you should tell me, this is why I told you not to jump. That is the time to help me get back on my feet and to remind me that this is not the end of the world. That is the time to help me move on. तो ऐसे कुछ होता है तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या होता है? मैंने तो मना किया ही था, फिर भी आपने किया तो आपको लग गई। बट नहीं, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा पॉज करके रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, पॉज लेके और उनको बोलना है, उनको हेल्प करना है, और ये बोलना है कि नहीं, इट्स ओके, हो जो हो गया, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। What will my state of mind be when I fall? I will think of myself as a failure and will be scared to face others. I will be in pain and will feel guilty about not considering your advice. If at such a time I get unconditional support, I will not experience fear or guilt. This is an example of loving someone the most when they least deserve it. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं, जो गिरेगा उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, उसको तो कितना गिल्ट और पेन होगा कि उन्होंने एडवाइस नहीं ली, बट उस टाइम अगर वो अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा तो वो फियर या गिल्ट नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। तो यही एग्जाम्पल है कि हमें कैसे किसी को प्यार देना है जब वो सबसे कम डिजर्व करते हैं। We should apply this understanding to bigger aspects of life and while taking major decisions. Always remember that when someone makes a mistake, it is not the time to teach him, it is the time to heal him. When a child is in pain, he should be able to communicate that to his family members without hesitation. This will happen only when they are, in general, not judgmental of him and they accept him.
तो ये सिस्टर शिवानी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन समवन मेक्स अ मिस्टेक, इट इज नॉट द टाइम टू टीच हिम, इट इज द टाइम टू हील हिम। जब कोई गलती कर रहा है उस टाइम उसको समझाने का नहीं है, उस टाइम उसको हमारी प्यार और हीलिंग वाइब्रेशंस चाहिए। और वैसे ही जैसे हमारा बच्चा पेन में है, उसको ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू अस बिना हेजिटेशन के। यू नो ये तभी होगा जब हम उसको जज नहीं करेंगे, उस टाइम पे वो जो कहेगा हम डिटैच होके एक्सेप्ट करेंगे, सुनेंगे उसकी हर बात। Suppose a young boy starts to smoke or drink or falls prey to an addiction. Instead of telling him that the habit is wrong, elders tell him that he is bad. This pushes him away from his dear ones and closer to the addiction. In such a case, family members need to adopt another approach. First, they should tell him that they do understand it is natural for someone of his age to want to try new things and that his friends must be doing it too. Then they should gently convey to him the harmful effects of addiction. In this way, they can come closer to the child and help him push away his act. तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि अगर किसी को एडिक्शन हो जाए, छोटे बच्चे को छोटा यंग है लड़का, उसको एडिक्शन हो जाए स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की, तो अगर हम उन्हें कहें कि ये गलत है, हम स्ट्रेट अवे उसको वो कर दे, रिजेक्ट किया आप गलत कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो हमसे दूर होएगा और एडिक्शन के पास और ड्रिंक करने लगेगा। तो सिस्टर शिवानी ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि सबसे पहले आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये हो जाता है इस एज में। बच्चे फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ नया करते हैं, उनको दिल करता है कुछ नया करने का। उनको पहले ऐसे पॉजिटिव वे में समझाना है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। उसके बाद आराम से उसको ये कन्वे करने हैं जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, मतलब उसके बाद हमें उसको समझाना है कि इसके क्या रिperकशंस हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के। इस वे में बच्चा हमारी बात सुनेगा और स्लोली स्लोली उस एडिक्शन से भी निकल जाएगा। If, however, the family members scold the youngster, he will move away from them and be drawn closer to his peers. It is then possible that at some point of time, his friends may ask him to do something that he does not want to do, but he would feel compelled to participate in it because their acceptance is important to him. This is peer pressure. तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे, वो हमसे दूर हो जाएगा और अपने फ्रेंड्स के और पास हो जाएगा। फिर बाद में हो सकता है कि फ्रेंड्स कुछ और करने को बोलें, उस टाइम पे उसको वो गलत भी लगेगा, बट वो फिर भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, उसके लिए उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी को प्रेयर प्रेशर कहते हैं। Today, there are too many distractions for children, and there is no way by which parents can keep tabs on them. Gone are the days when parents could check who their children talk to over phone. Now, there is unlimited access to all kinds of information right at their fingertips. In this scenario, the only way parents can shield their children is if the children themselves come to them and share their problems. This can happen only if parents assure the children of their unconditional availability and support. They must make it clear that they are ready to hear out even if the child has made the biggest blunder. तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि आज की डेट में बच्चों के पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। पहले के ज़माने में पेरेंट्स चेक कर लेते थे किससे फ़ोन पे बात की, क्या देखा, यू नो क्या चल रहा है, वो सब चेकिंग फिर भी हो जाती थी। बट आज अनलिमिटेड एक्सेस है, हर चीज़ का इतना ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चों को। तो इन आज के डेट में द ओनली thing that can protect the children is
अगर बच्चे खुद आके पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करें। और ये तभी होगा जब पेरेंट्स अपना अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देंगे, विदाउट जजिंग, सारी बात सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में बच्चों को एडवाइस करेंगे, तो ही ये हो सकता है पॉसिबल। They must make it clear that they are ready to hear out even if the child has made the biggest blunder. तो बच्चे को सपोर्ट करना, कंफर्टेबल फील कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। If children are scolded whenever they share their secrets with their parents, they will not be able to open up to them when they grow up. A lady used to attend our program along with her 10-year-old son. One day we discussed that children lie to their parents because they are afraid of being scolded by them. She made a note of it. The next day she found that particular line underlined in her notebook. She wondered who did that. When she asked her son, he accepted that he had underlined it. She sensed that he wanted to tell her something. So she told him that he could freely confess anything and she would not be angry with him. The child told her that he had failed an exam but did not have the courage to tell her earlier. ये देखो, ये कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सिस्टर शिवानी ने दिया है कि कोई उनका प्रोग्राम अटेंड करता था अपने छोटे बेटे 10-year-old सन के साथ। तो एक दिन ना वो उसने को डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे डरते हैं पेरेंट्स से हर चीज बताने को, क्योंकि उनको डर लगता है कि बच्चे गुस्सा, माँ बाप पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। उन्होंने वो अपने नोटबुक में लिखा। अगले दिन उन्होंने क्या देखा कि उनके बेटे ने वो अंडरलाइन की हुई थी लाइन कि कि दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, इस बात को अंडरलाइन किया हुआ था। तो जब उन्होंने ये नोटिस किया और अपने बेटे से पूछा, तो फिर तब उसके बेटे ने कन्फेस किया कि वो फेल किया हुआ था उन्होंने एग्जाम, और उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की। To hide things and live in fear is very difficult for children. So it's important that parents build confidence in children that they can come to them anytime for support. In fact, we must give such an assurance to everyone, not just children. Even in the workplace, people lie when requesting for leave and in other matters because they are reprimanded for speaking the truth. A parent or a team leader must make sure that whatever be the situation, his first response is not one of disturbance. He should be able, he should be stable, understand the situation, and accept what the other person is saying. This is how we can create a culture of transparency where everyone can speak their mind. If we do not build an environment that allows us to share our thoughts, then the one suffering will have to face it all alone. तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि ये जो एक एक फेयर फेयरलेस और एक फेयरलेस जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर जगह होना चाहिए। इवन काम की जगह में लोग छुट्टी लेते वक्त झूठ बोलते हैं, बिकॉज उनको यही लगता है कि हमारा सच माना नहीं जाएगा। तो हर जगह हर किसी को ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि वो किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट ना करे, पहले ही, वो डिस्टर्ब वाला रिएक्शन ना दे। हर बार स्टेबल रह के अंडरस्टैंड करनी है सिचुएशन, उसके बाद डिसीजन लेना है। और उसके बाद जो भी सिचुएशन है उस पे एडवाइस देनी है, ताकि हर कोई फेयरलेसली अपने थॉट्स शेयर कर सके। Once a couple shared with us that their 17-year-old son had committed suicide. Only after the incident, they came to know that he had faced a lot of difficulties in college. They said he had never discussed it with them,
Had he done that, they would have helped him. If one is unable to share one's inner pain, it keeps piling up within and can reach such extreme levels. तो वो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अपनी जो भी सिचुएशन है वो शेयर करें. सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं many parents remain preoccupied with work or networking. They are too busy to talk to their children, to appreciate their talents and achievements at school, or to watch them perform. If the basic bond is not developed, how can children approach their parents in times of need? Right. So remember to love others when they least deserve it, because that is the time when they need it the most. The other thing to understand is that everyone's definition of right and wrong is different. So when we are discussing something, our words should be, I am right, you are also right from your perspective. Now let's sit and talk. If both parties think I am right, you are wrong, then no discussion can be fruitful because the judgment has already been passed. Remember to replace the label wrong with different, as there is a lot of energy difference between these two. The former is disrespect for others, while the latter is respect. This changes the foundation of our relationships. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टर शिवानी ने समझाया है कि हम जब भी किसी के साथ बैठे कुछ भी बात करने के लिए हमारा क्या थिंकिंग होना चाहिए और हमें क्या कहना चाहिए कि मैं सही हूँ और आप भी सही हो अपने पर्सपेक्टिव से. अगर हम ये बोलेंगे कि मैं सही हूँ आप गलत है, तो उसका जजमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, हमने तो ऑलरेडी अपनी बात को सही कह दी है. तो फिर अगला बंदा बोलेगा अब क्या बात करने का फायदा जब आप कह रहे हो कि मैं आप सही हूँ और मैं गलत हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ये ना बोले कि गलत है. हमेशा ये डिफरेंट वर्ड यूज करें, क्योंकि रॉन्ग में तो फिर एक गलत हो जाता है एनर्जी, उसमें तो फिर कुछ क्वेश्चन ही नहीं रेज कर सकते. बट जब हम डिफरेंट कहते हैं तो एक वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. और जैसे सिस्टर शिवानी कह रही है कि रॉन्ग कहना इज डिसरिस्पेक्ट फॉर अदर्स, while different कहना is respect. So this changes the foundation of our relationships. तो ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने मिला हमें इस चैप्टर से. सबसे इम्पोर्टेंट यही है, लव अदर्स व्हेन दे लीस्ट डिजर्व इट. इसी में इसका पूरा क्रक्स है. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you so much. थैंक यू सो मच सिस्टर. ओके, तो अभी now we'll see each other tomorrow. No, not tomorrow, on Monday. Okay. Thank you, Ritu sister. Thank you for joining. Bye. Bye. Thank you.